بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب بہن، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے یتیم کی بد دعا۔ ایک شہر میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ہاں زینب بہن، اس کے 2 بچے تھے۔ ایک 7 برس کی لڑکی جس کا نام نجمہ تھا اور 5 برس کا بیٹا جس کا نام وسیم تھا۔ 6 مہینے پہلے اس کا خاوند ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا، یعنی اس کی وفات ہو چکی تھی۔ ہاں زینب، 6 مہینے پہلے اس کا خاوند مزدور تھا اور مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، لیکن 6 مہینے پہلے اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ عورت اپنے دونوں بچے یعنی نجمہ اور وسیم کو کسی طرح دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا برتن مانج کر پالنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو وہ ایک بات کی بات ہے کہ اس سمے رمضان کا مہینہ تھا۔ ہاں زینب بہن، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، وہ روزے میں تھی۔ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 دن سے نہ انہوں نے کچھ کھایا تھا نہ ان کے دونوں بچوں نے کچھ کھایا تھا۔ تو وہ لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے محلے میں گئی۔ دھوپ بہت ہی کڑی تھی، بہت ہی کڑی دھوپ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی اور روزے میں تھی۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی اپنے بچوں کے لیے، تاکہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر سکے، اپنے بچوں کو کچھ دے سکے کھانے کے لیے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو 2 دن سے بھوک سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن کسی نے ان کی امداد نہیں کی۔ دھوپ اتنی کڑی تھی کہ چلتے چلتے انہیں اچانک چکر آیا اور وہ لہرا کر زمین پر گر پڑی۔ ان کو بھی دل کا دورہ پڑا، کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اسے لوگ باہر نہیں نکلے تھے، کسی نے انہیں نہیں دیکھا، کسی نے اسے اسپتال نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ یہ بات جب نجمہ 7 برسیہ نجمہ اور 5 برسیہ اس کا بھائی وسیم کو پتا چلا تو وہ دوڑے دوڑے ماں کے پاس پہنچے۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ وہ ماں سے لپٹ کر رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ان کی چلاہٹ سن کر اگل بگل کے لوگ باہر نکل آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے تو ان سب کو بڑا افسوس ہوا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں پر بڑا افسوس ہوا کہ اب اللہ پاک ان بچوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ بیچارے دونوں ننھے بچے یتیم ہو گئے۔ سب نے افسوس ظاہر کیا، لیکن کسی نے ان بچوں کو گلے سے نہیں لگایا۔ پھر ایسا ہوا کہ گاؤں والوں نے مل کر اس کی ماں کو یعنی کہ نجمہ اور وسیم کی ماں کو غسل کیا اور پھر اسے کفن دفن کر دیا۔ اب یہ دونوں چھوٹے ننھے بچے گھر میں تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ 7 برس کی نجمہ اور 5 برس کا وسیم کتنے چھوٹے تھے، انہیں پتا نہیں تھا کہ دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سسک رہے تھے، رو رہے تھے۔ 2-3 دن سے بھوکے تھے، 2 دن سے انہوں نے ان کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا تھا۔ رات ہو چکی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، لیکن محلے میں افطاری کرنے والے، روزہ کھولنے والے کسی مسلمان نے ان کے گھر میں آ کر دستک نہیں دی۔ کسی نے یہ آ کر نہیں دیکھا کہ جو بیوہ عورت مر گئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے رہیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کوئی انہیں دیکھنے نہیں آیا۔ لگ بھگ رات ہو چکی تھی، رات کے 8 بجے اس کے گھر میں پوری طرح اندھیرا چھایا ہوا تھا، بجلی بھی نہیں آئی تھی۔ تبھی ایک بزرگ وہاں آیا جس کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی، 45 سال رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ بزرگ روتے ہوئے بولا، کہاں گئی میری بھتیجی، کہاں گیا میرا بھتیجا؟ میں امریکہ میں تھا، میں آج جیسے ہی اپنے دیش آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی بھی مر چکا ہے اور میری بھابھی بھی مر چکی ہے، کہاں ہے میرے بھتیجی کہاں ہے؟ اور پھر وہ ان دونوں کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی چاچی یا نجمہ کی چاچی بھی تھی، لیکن نجمہ کی چاچی نے جب ان دونوں بچوں کو دیکھا تو ناک منہ اس نے سکوڑ لیا۔ بچوں کے گندے کپڑے دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن اپنے خاوند کی وجہ سے وہ چپ ہو گئی۔ تب اس کے یا نجمہ کے چاچا اور وسیم کے چاچا نے کہا، اپنی بیگم سے کہا کہ ان کے کپڑے پیک کرو، یہ ہمارے ساتھ شہر میں رہیں گے، ہمارے گھر میں ہی رہیں گے۔ حالانکہ اس کے
उसकी जो चाची थी उन्हें लेकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने खाविंद के आगे उनकी एक ना चली। वो उनके कपड़े एक झोले में रख दी और फिर नजमा और वसीम दोनों अपने चाचा के साथ शहर आ गए। शहर में उसके चाचा के 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। उन तीनों ने जब इन दोनों को देखा तो उन्होंने भी यानी उनके बच्चों ने भी नाक भौं सिकोड़ लिए। उन्होंने कहा, ये आप किस भिखारन को घर में ले आए, इन्हें घर से बाहर फेंको। लेकिन उन नजमा के चाचा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे चचेरे भाई बहन हैं, आज से ये दोनों भी इसी घर में रहेंगे, हमारी औलाद की तरह रहेंगे। इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए अब इसके माँ बाप हम ही हैं। इसलिए आज से ये दोनों तुम लोगों के साथ खेला करेंगे, तुम लोग के साथ पढ़ेंगे, तुम लोगों के साथ रहेंगे। कुछ दिनों तक तो ठीक रहा। उसके बाद नजमा के चाचा वापस अमेरिका चले गए और फिर अमेरिका जाते ही उसकी चाची ने, नजमा की चाची ने उन दोनों पर सितम ढाना शुरू कर दिया। सुबह होते ही वो बोली कि जा पूरे घर में झाड़ू लगा ले। हालांकि नजमा ने कभी झाड़ू नहीं लगाया था, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसने माँ को झाड़ू लगाते हुए देखा था, इसलिए उसको जैसे आता था उसने पूरे घर में झाड़ू लगाया। जब झाड़ू लगा ली तो चाची ने कहा, सारे बर्तन मांजो, कपड़े धो, और फिर ये जुर्म उस पर शुरू हो गया और वो दिन भर भूखी रही। नजमा दिन भर भूखी रही, उसका भाई वसीम भी दिन भर भूखा रहा। चाची ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा। जब वसीम को बहुत जोर से भूख लगी तो वो बोली कि चाची मेरे वसीम को भूख लगा हुआ है, कुछ खाने को दे। तो वो बोली, हम रोजा रखे हुए हैं, इसलिए अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाकर पका लो। अब वो क्या पकाती, छोटी सी बच्ची कैसे पकाती। वो किचन की तरफ बढ़ी तो देखिए एक रूम में उसका चचेरा भाई अच्छे बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी नाश्ता कर रहा है। नाश्ते को देखकर उसके साथ साथ उसके भाई यानी वसीम के मुंह में पानी आ गया। वो बोली, भाई मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे दो, मेरा भाई बहुत भूखा है। तो उसका चचेरा भाई बोला, भागती हो यहाँ से, ये तुम जैसे भिखारन के लिए नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। उसके बाद वो रोती हुई वहां से बाहर आ गई। उसके बाद उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि बचा हुआ नाश्ता उसका चचेरा भाई कुत्ते को दे रहा है। हाँ, उसका बचा हुआ नाश्ता उसने कुत्ते को दे दिया खाने के लिए, लेकिन अब भूख से बिलखते अपने चचेरे भाई अपने चचेरी बहन को नहीं दिया। खैर शाम हुई तो उसने सोचा कि शाम को अफ्तारी जरूर मिलेगी। नौकरानी ने अच्छा लजीज अफ्तारी बनाया था, अच्छे पकवान बनाए थे। पकवान को देखकर वसीम और नजमा के मुंह में पानी आ गया। जब अफ्तारी का वक्त आया, दस्तरखान लगाया गया और वो दोनों जब दस्तरखान के पास पहुंचे तो चाची ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग को हिम्मत कैसे हुई दस्तरखान के करीब भी आने की, तुम लोग दूर हटो, दूर जाकर बैठो। और दोनों भाई बहन सहम कर 10 कदम पीछे आ गए और जमीन पर बैठ गए और ललचाई नजरों से दस्तरखान पर सजे स्वादिष्ट लजीज खाने को देखते रहे। लेकिन उसके चाची के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उसने नौकरानी को आवाज दिया और कहा, इन दोनों के लिए जाकर खाना ले आओ। नौकरानी खाना लेकर आई तो खाना देखकर दोनों बच्चे दंग रह गए। उनका दिल दर्द से तड़प उठा। खाने में सूखी हुई बासी रोटी थी और नमक था और सादा पानी। वो दोनों बच्चे यानी नजमा और वसीम कुछ देर तक दस्तरखान पर सजे लजीज खानों को ललचाई नजरों से देखते रहे। फिर बड़ी मुश्किल से सूखी रोटियों को पानी में भिगो कर उस नजमा ने खुद खाया और वसीम को खिलाया। इसी तरह ये जुल्म चलता रहा। ये चाची जो है इन दोनों बच्चों पर सितम ढाती रही, दिन भर काम करवाती और रात को सूखी रोटी खाने के लिए देती, नमक के साथ खाने के लिए देती। एक दिन क्या हुआ कि दोनों घर में बैठे हुए थे। चाची अपने बच्चों के साथ शहर चली गई शॉपिंग करने के लिए। शाम को रोजा खोलने के वक्त जब वो आई तो उसने ढेर सारा फल, ढेर सारा समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, ना जाने क्या क्या होटल के सामान लेके आई। समोसे को देखकर वसीम के मुंह में पानी आ गया, उसकी भूख बढ़ गई। वो सोच रहा था कि आज वो समोसे खाकर ही रहेगा। जब रोजा खोलने का वक्त आया, दस्तरखान पर सजे हुए समोसे को देखकर वसीम और नजमा दोनों के मुंह में पानी भराया तो वसीम ने कहा,
दीदी, वसूम ने कहा, दीदी आप ही मैं आज समोसा खा के रहूंगा, कुछ भी हो आज मुझे समोसा खाना है, फिर मैं कभी नहीं मांगूंगा, बस आज मुझे समोसा खिला दे, आज मुझे चाची से समोसा मांग कर ला दे। वसीम की बात सुनकर नजमा को दिल को धक्का लगा। वो रोते हुए दस्तरखान के पास पहुंची और जबरदस्ती उसने एक समोसा उठा लिया, और जैसे ही नजमा ने समोसा उठाया उसकी चाची चिल्लाते हुए उठकर खड़ी हो गई। पहले उसने समोसा उसके हाथों से छीनकर प्लेट में रखा और फिर उसकी धुनाई शुरू कर दी, उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने उस नन्ही सी बच्ची को बाल पकड़कर घसीटने लगी, लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगी और वो उसे तब तक पीटती रही जब तक कि नजमा बेहोश ना हो गई और वो उसकी चाची थक ना गई। वसीम चिल्लाता रहा, रोता रहा कि चाची माफ कर दो, मेरी आपी को माफ कर दो, आज के बाद ये कभी समोसा नहीं उठाएगी, आज के बाद कभी वो दस्तरखान पे आप लोगों के साथ नहीं बैठेगी। लेकिन उसकी चाची तो उस समय चुड़ैल बन चुकी थी, उसके वो अपने होश हवास में नहीं थी। उसके बाद वो जब नजमा बेहोश हो गई तब उसका कलेजा ठंडा हुआ। थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद अचानक क्या हुआ कि नजमा की चाची और उसके तीनों चचेरे भाई बहन अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। फौरन उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में जब गया तो वहां पता चला कि कल बाजार के एक होटल में जो समोसे बनाए गए थे, उस समोसे को उस तेल में फ्राई किया गया था जो बहुत ही पुराना था। उस तेल में पॉइजन था, यानी कि उस तेल में छिपकली गिर गई थी और उसी तेल में हलवाई ने, दुकानदार ने समोसे छाने थे। उस दिन जिसने भी समोसे खाए थे वो सब बीमार हो चुके थे। वो जहरीला समोसा खाकर सब मौत और जिंदगी से लड़ रहे थे, सब अस्पताल में भर्ती थे। और इसके बाद नजमा के चाचा भी ये खबर सुनकर अमेरिका से वापस आ गए, अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के बहुत इलाज करने के बाद नजमा की चाची तो बच गई, लेकिन उनके तीनों चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। अल्लाह ने इन दो छोटे नन्हे यतीम की दुआ सुन ली थी। हाँ, यतीम की दुआ सुन ली थी। उसके चाची को उनके किए की सजा मिल गई। हाँ, उसकी चाची को उनके किए की सजा मिल गई। उनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। चाची को समझ में आ गया कि उन्होंने जो इन मासूम भोले भाले यतीम बच्चों के साथ जुर्म किया था, सितम किया था, अल्लाह ने उसी सितम का अजर उसे दिया है, उसी सितम का फल उसे दिया है कि अल्लाह पाक ने उसके तीनों बच्चों को उससे छीन लिया है। वो संभल गई, उसने अल्लाह पाक से माफी मांगी अपने गुनाहों से और उन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा दिया। अल्लाह पाक ने यतीम की दुआ सुनी और अब उन दोनों यतीम को माँ भी मिल गई, बाप भी मिल गया। यानी अब चाची उन दोनों को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी, अपने बच्चों की तरह उन्हें मानने लगी और ये दोनों यतीम भी अब खुश रहने लगे। उन्हें भी अब माँ और बाप का प्यार मिलने लगा। वाह अली भाई, वाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा वाकया सुनाया। हाँ, हमें भी हर मोमिन को चाहिए कि वो यतीम की इमदाद करे, यतीम की मदद करे, यतीम पर जुर्म ना ढाए, यतीम पर सितम ना करे, क्योंकि यतीम पर सितम ढाने वालों पे अल्लाह गजब ढाता है, अल्लाह अजाब लाता है, अल्लाह गुस्सा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी यतीम को ना सताएं, बल्कि उनकी इमदाद करें, उनकी मदद करें। हाँ जैनब बहन, आप सही कहती है। हर मोमिन को चाहिए कि वो यतीम का साथ दे, यतीम की मदद करे।